Hello my dear students, welcome to your science class. We have discussed respiration in organisms in two parts. In part 1 we discussed about introductory portion of this chapter, and in part 2 we discussed in detail, and now in part 3 we are going to have some more detail about comparison between inhalation and exhalation. In previous video, that is part 2, we discussed about the process of breathing, what was inhale and exhale, and then we saw that what is respiration, what is breathing separately. And today we are going to see the differences between respiration and breathing. It will be in a table, and then we will see that actually what we breathe out. Okay, so let's start with that. So if you compare between inhalation and exhalation, you will find out that during the process of inhalation, diaphragm contract and flattens. You know the structure of diaphragm, normally it is a dome shaped, and dome shaped, you can say that in diaphragm will look like that. This is the structure of diaphragm when it is in when we are in resting position, when we are not inhaling or exhaling, or during exhale, normally it is dome shaped, and when there is inhalation, this will contract and it will flat. So like that it will be. Actually, you know, the diaphragm makes the base of what? Base of the chest cavity where lungs are situated. So it flattens. When it contracts, it flattens. And what happens during exhalation? Diaphragm relaxes and becomes dome shaped. I know that you are now aware about dome shaped. In another things, if you see that when it contracts, when this diaphragm contracts, chest cavity increases. So you can say that during the process of inhalation, chest cavity increases, means volume of the chest cavity increases, and just opposite to the inhalation, in exhalation, volume of chest cavity decreases. Here you can say you have seen that lungs expands during exhalation, and during exhalation lungs contracts. Air flows into the lungs during the process of inhalation, while the process of exhalation, air is forced out of the lungs. So these are the basic differences you can compare between inhale and exhale. So this is something you can feel in your own body, how inhalation and exhalation takes place. So separately you are aware about process of inhalation and exhalation. With this comparative study, you can get a clear picture of that. So now we are moving towards next portion, that is respiration and breathing. If you try to differentiate between respiration and breathing, normally what happens in a rough manner, you can say that normally क्या होता है, जैसे हम we are exchanging, कि कभी respiration बोल दिया, कभी breathing बोल दिया, कभी breathing बोल दिया, कभी respiration बोल दिया, हम interchange करते रहते हैं. तो अगर एक ऊपर से देखा जाए तो ये चीज़ें आप ठीक है एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली दीज टू आर डिफरेंट प्रोसेस. हाँ, येस, दे आर इंटररिलेटेड, but they are different. How they are different, we can see here. So in respiration, there is a release of energy at the end. Wherever respiration will take place, there will be a release of energy, but there is no release of energy during breathing. So breathing is a process where there is no release of energy, means there is no breakdown of food. So it is an intracellular process, means takes place inside the cell. Which process is intracellular? Respiration is a intracellular process, means it takes place within the cell, inside the cell, while breathing is an
extracellular process. So where breathing takes place, it takes place between the organism and its environment. You just think that from where you takes air inside your nostrils. आप जब भी आप फील करिए, आप देखिए कहाँ से आपके अंदर से हवा आती है, कैसे आप पाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से, आप बाहर से इन्वायरमेंट से ही आप हवा अपने अंदर लेते हैं। जब आप ये कहते हैं कि आई एम ब्रीदिंग, मतलब आप सांस ले रहे हैं, तो आप सांस कहाँ से लेते हैं? आप बाहर हवा जो है, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो कि आपका वातावरण है, वहाँ से आप हवा लेते हैं। तो ये हुआ कि हाँ, आप एक हो गए ऑर्गेनिज्म, मीन्स हम, हमारी ह्यूमन बॉडी या जो भी ब्रीथ करता है, तो उन्हें हवा चाहिए और वो हवा कहाँ से आई? इन्वायरमेंट से आई। तो ये क्या हो गया? ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, मीन्स इट इज़ टेकिंग प्लेस आउटसाइड द सेल। जब आप रेस्पिरेशन में अंदर पार्ट को लेंगे तो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। यू नो दैट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन breaking down of food takes place, and during breathing it is a physical process involved inhalation and exhalation। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ फूड टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। और ब्रीथिंग में क्या है कि ये फिजिकल प्रोसेस है, और यहाँ पे इनहेल होता है, एक्सहेल होता है। क्या होता है इसमें इनहेल एक्सहेल में? आपको बताया था कि ऑक्सीजन रिच एयर हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होती है वो बाहर आती है। अब यहाँ कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि आप सर बता रहे हैं कि हम ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं, हम नाइट्रोजन क्यों नहीं अपने अंदर लेते हैं और गैसेस क्यों नहीं अंदर लेते हैं? एक्चुअली आपको मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे नॉस्ट्रिल से जितनी भी गैसेस हैं वो हमारे बॉडी में जाती हैं, लेकिन जो काम की चीज़ होती है ऑक्सीजन, वही हमारे बॉडी द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, बाकी सारी चीज़ें जो है ना बाहर निकाल दी जाती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फ़िल्टर होता है किसका? जो डस्ट पार्टिकल हैं उनका फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन जैसे ही आप किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं कि और गैसेस क्यों नहीं जाती हैं, सारी गैसेस आपके अंदर जाती हैं। अगर नहीं जाती तो जब आप धुएं में सांस लेने जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? अगर आप केवल ऑक्सीजन लेते तो धुएं से आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप जान लीजिए गैसेस सारी जाती हैं, लेकिन आपके बॉडी में उनको रिसीव नहीं किया जाता है या उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता ब्लड में, तो वो चीज़ें वापस आपको बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं, मतलब बाहर निकल जाती हैं। तो उसके बारे में हम और बात करते हैं आगे वाले डिफरेंस में। क्या है कि एक्चुअली हमारे सांस से जो बाहर निकलता है वो क्या होता है, जो अंदर जाता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियर हम बताना चाहते हैं। तो पहली चीज़ है जो ऑक्सीजन है वो इनहेल एयर। देखें कि आपको बताया गया था कि when you see the composition of air, 21% oxygen is there in our environment. So when we inhale, there is other gases also. You know that 78% our nitrogen is also there. ये भी आपके अंदर जाती है, लेकिन मैंने बताया कि उसको रिसीव नहीं किया जाता है और वो बाहर चली जाती हैं, ऐसा होता है। तो इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन, जब एक्सहेल करते हैं तो 16% ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर चली जाती है। तो आप देखिए कि 21% तो मोर ऑक्सीजन हुआ, 16% जो हुआ वो लेस ऑक्सीजन हुआ। तो आप यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं, अच्छा बताइए सर कि आपने कहा कि इनहेल एयर में भी ऑक्सीजन है, एक्सहेल एयर में भी ऑक्सीजन है, तो क्यों नहीं पूरी ऑक्सीजन एक ही बार में ले ली गई? तो यू नो दैट देयर इज़ certain limitation that is based on the capacity of our lungs, capacity of interchange exchange of gases। तो सारी गैसेस को एक साथ, सारे 21% ऑक्सीजन को एक साथ लेना संभव नहीं है बॉडी में, तो इसलिए वो चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन इमीडिएटली जो चीज़ रिसीव हो पाती है, आप अगर डिफरेंस देखें तो 5% के करीब जो चीज़ें हैं आप कम हो गया यहाँ पे और वो चीज़ें रिसीव हो गई। तो आपको ये है कि ऑक्सीजन रिच एयर आती है, लेकिन ऑक्सीजन जो डेफिशिएंट एयर जो होती है वो बाहर निकलती है, मतलब कम ऑक्सीजन वाली गैस जो होती है बाहर निकलती है कंपैरेटिवली इनहेल एयर। दूसरी बात आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पे, तो इसमें कंटेंट 0.03%, जबकि आज के डेटा में अगर देखा जाए तो ये जो रेट है ये बढ़ गया है। कितना हो गया है? 0.04% हो गया है। कितना है? 0.04%। क्या है ये हो गया है
CO2 का परसेंटेज कहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये पिक्चर है इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया कि करेंटली जो है वो 0.04% है, या आप कह सकते हैं कि हो सकता है रिसेंट डेटा में और भी ज़्यादा हो। तो ये है। अब जब हम एक्सहेल करते हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है। कहाँ से इतनी आती है? क्योंकि ये जो हमारे अंदर ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में, जो रिलीज़ होती है चीज़ें, तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर आ जाती है। तो जाती अंदर है कार्बन लेस एयर, कार्बन डाइऑक्साइड लेस एयर, लेकिन बाहर जो आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है कंपैरेटिवली अगर देखें। दूसरी बात देखें कि यू नो दैट देयर इज़ वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। तो the air which goes inside during the process of inhalation, it is having less water vapor, and the air which comes out of the body, exhaled air, that contain more water vapor। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये जब भी हम रिस्पायर करते हैं, जब हम ब्रीथिंग के प्रोसेस को अगर आप देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर जाती हैं और ऐसे ही बाहर आती हैं। तो आई होप नाउ योर डाउट्स आर क्लियर रिगार्डिंग नाइट्रोजन आता है नहीं आता है, बाकी गैसेस आती हैं नहीं आती हैं। तो ये सब आप अपने माइंड में एकदम क्लियर रखिए कि जाने को सारी चीज़ें जाती हैं, लेकिन जब स्नीजिंग के प्रोसेस को आप देखें तो अगर डस्ट पार्टिकल अगर घुस गया आपके नॉस्ट्रिल से, अब इफ़ इट इज़ गोइंग इनसाइड ट्राइंग टू इंटर इन योर बॉडी, तो स्नीजिंग होती है, और जिससे क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल हैं या और भी ऐसे पार्टिकल हैं जो कि अलाउड नहीं होते, वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये स्नीजिंग का प्रोसेस है एक तरीके से कि आपकी बॉडी को सेफ रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अब आपको नोट्स बनाने हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, और दीज आर द साइट्स फ्रॉम वेयर आई हैव कलेक्टेड द मटेरियल। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।